इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड से एनकाउंटर हुआ है तुम्हारा कभी? व्हेन Yes sir. व्हेन व्हेन यू सर आर मैं इन? पहले ट्यूशंस जाती थी तो वहां पे मैं ये सब थोड़ा पढ़ चुकी हूँ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अभी है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड? डू यू आर जस्ट फेसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ? Yes sir. कैसे? एक्सप्लेन मी हाउ. Sir, because as if we are on the earth and earth also have a earth current. अर्थ करंट? नो, अर्थ इज और न्यूट्रल. अर्थ कर सर अर्थ हम लोग करंट. सर मैं दूसरी चीज चलो. और every object has an charge which attract each other. हाँ तो बट नेट चार्ज इज जीरो है ना. नेट चार्ज जीरो है. इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, आई एम गिविंग यू टू एग्जांपल्स. यू आर नाउ देयर इज लाइट अराउंड यू है ना. लाइट है, मे बी सनलाइट, मे बी ट्यूबलाइट. तो लाइट हैज गॉट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो वी आर all surrounded by the electrical and magnetic field 24/7. Night may even in night also, when all the lights are off, है ना, Yes. no sunlight also, then also do we have the electric field? Are we surrounded by the electric field and magnetic field in night? Yes sir. कैसे? How it is? How it is? बोलो. So I don't know the exact definition about that, but I have Definition, example देना. You have to give the example. हाँ बोलो. Night also, in night also we are surrounded by the electrical magnetic field. How? Because cell phone, TV, radio, these signals are radio waves, and radio wave also have the electrical and magnetic field. So every yes time when we are in the light or even we are in the dark, we are surrounded by the electrical and magnetic field. Okay, and today we are going to see how the light bodies are repelling, live demo, and also how the uncharged body is being uncharged body is being attracted by the charged body. Both the demo we are going to see. Before that, we have to complete the homework, and also the electrostatics of the conductor. First we will see, then we will see the demo of that. Who is this Hindustani Bhau? Who is this? कौन है ये? Name yourself. जल्दी बोलो, कौन है ये? कीर्तन. Shivani. Shivani, you are attending the regular classes or you are missing it sometimes? Shivani? Attending regularly है ना? Yes, okay. sir. Any difficulty to anybody? बोलो जल्दी से. जस्ट होमवर्क पे आ जाते पहले है ना. ओके चलो, ये होमवर्क था. इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड से कर रहे थे हम लोग. फिर हम क्या करेंगे, पोटेंशियल से उनका रेशो निकाल लेंगे चार्जेस का, एंड उसके बाद पुट कर देंगे. तो डायरेक्ट, व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद द पोटेंशियल? वी कैन सेव 2-3 लाइंस. नाउ टेल मी, charges from one conductor to other conductor will flow till the potential becomes equal. है ना. जैसे वाटर में, 2 कंटेनर में वाटर है, you join them with the pipe and open the knob of that pipe. Water will be going from lower level to a higher level to lower level till the level becomes equal. Similarly here also, charges will move from the high potential body to low potential body, even if it is a smaller one, doesn't make any difference. तो जब तक फ्लो होंगे, जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा. तो एट इक्विलिब्रियम, when charges are stopped flowing, do not further flow, potential of one body is equal to potential of second body. Spherical body के लिए we write k q1 by, we write k q1 by a, and here k q2 by b. If we multiplied by a and divide by a, here multiplied by b divided by b, तो ये हो जाएगा k q1 by a square, so that is e1, और एक a बच जाएगा, that will be k, I mean second one will be e2, k q2 by b square, एक b बचेगा, तो this will be e2 into b. ठीक है.
तो यहाँ से अपना आंसर तो आ जाएगा E1 by E2 इज इक्वल टू B by A। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन इसमें मैं और तुमसे लेट मी आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस and also second part पहले complete करते हैं, then I will ask you the question. Let us see the what is the second part. Use this result to obtain the to explain why the charge density on the sharp and pointed ends of the conductor is higher. So since E directly proportional to sigma, है ना, therefore sigma 1 by sigma 2 is equal to B by A, है ना। तो B अगर कम होगा, B ज्यादा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सिग्मा विल बी मोर, है ना। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। चलो पहले तो हम यहाँ से देख लेते हैं, सिग्मा का बाद में आते हैं। ओके, इसको कट ही कर दो। चलो यहाँ तक ठीक हो, फील्ड का आ गया। नाउ यू टेल मी which spherical body will have more field, smaller or bigger? छोटी वाली पे फील्ड ज्यादा होगी कि बड़ी वाली पे फील्ड ज्यादा होगी? देखो सब, बहुत छोटी वाली का रेडियस हम लोग 1 ले लेते हैं, E1 into 1, बड़ी वाली का 2 ले लेते हैं, है ना। तो यहां से कंक्लूजन देखो, सीधा कंक्लूजन, अगर ये वैल्यू कम है तो फील्ड विल बी मोर, है ना। इफ दिस प्रोडक्ट ऑफ टू हैज टू बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, सपोज थर्ड बॉडी भी है तो E3, इस तरह के सिचुएशन को हम कांस्टेंट लिखते हैं, है ना। तो ये अगर इसका रेडियस 1 है तो फील्ड बड़ी होगी, तभी प्रोडक्ट इसके बराबर होगा, है ना। सपोज इफ आई से सेकंड बॉडी, बिगर बॉडी की फील्ड 1 ऐसा यूनिट है, 1 into 2, तो ये 1 है तो ये कितनी होगी, ये 2 होगी, तभी इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो लेसर द रेडियस बिगर इज द फील्ड, समझा कि नहीं। जिसकी रेडियस कम है उसकी फील्ड ज्यादा है, देयरफॉर स्मॉलर द रेडियस बिगर द फील्ड। तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। सपोज हमको चार्ज कर दिया जाए अपनी बॉडी को, तो जो टिप्स है, नोज है, नोज का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, फ्लैट बॉडी का इनफाइनाइट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हेड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीजेस, फर्दर इंक्रीजेस, है ना, फ्लैट हो जाते हैं। हाथ अगर फ्लैट कर लिया हमने तो इनफाइनाइट है, हाथ को हमने क्लिंच किया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो नोज का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो वहां पे फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना। फील्ड विल बी मोर नियर टू द नोज एज कंपेयर टू हेड, है ना। तो अगर तुम्हें नोज के पास कोई दूसरा आदमी कोई फिंगर लेके आता है तो वहां से स्पार्क जंप होता है, फील्ड इज मोर, एयर इज आयोनाइज्ड नियर टू दैट, है ना। एंड इफ somebody comes close to your nose, कोई somebody brings finger to your nose, near to your nose, spark will be jumping, है ना। अगर तुम डार्क कर दो तो तुम्हें दिखता भी है स्पार्क, यू नो, इट इज हाईली चार्ज बॉडी में जो स्पार्क जंप होता है उसको कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। अभी तुम लोग कोरोना वायरस से कुछ लेना देना नहीं है इसका, है ना। कोरोना इज हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कोरोना इफेक्ट बोलते हैं उसको। वेंडिग्राफ जनरेटर अपने कोर्स में नहीं है, वहां पे ऐसा होता है, पॉइंटेड एंड से चार्ज जंप करके बेल्ट में चले जाते हैं। स्टेट बोर्ड, आरसीआई यू ज्वाइन, तो स्टेट बोर्ड के बुक में है कोरोना इफेक्ट, है ना। पॉइंटेड एंड से चार्जेस जंप होके बेल्ट में चले जाते हैं, है ना। और सन का जो एटमॉस्फेयर है, जो आउटसाइड का एटमॉस्फेयर है, उसको कोरोना बोलते हैं। रेरिफाइड गैसेस हैं। सोलर एक्लिप्स में व्हेन वी आर सीइंग, व्हेन द मून इज एक्लिप्सिंग इट, तो आउटसाइड का जो ग्लो दिखाई पड़ता है, दैट इज अ कोरोना ग्लो वी कॉल इट, है ना। नथिंग टू डू विद द कोरोना वायरस एंड ऑल, ठीक है। तो क्लियर। तो स्मॉल द रेडियस, बिग इज द फील्ड, है ना। एंड तो पॉइंट जो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, सिंस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो सिग्मा विल आल्सो बी मोर नियर पॉइंटेड एंड्स, नियर पॉइंटेड एंड्स। कोरोना इफेक्ट बोलते हैं, वहां पे स्पार्क भी जंप हो जाता है, एयर आयोनाइज हो जाती, फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि एयर आयोनाइज हो जाती है, तो जंप हो जाते हैं। जैसे लाइटनिंग होती, लाइटनिंग में क्या है, फील्ड बहुत स्ट्रांग है क्लाउड्स की, वहां पर एयर आयोनाइज हो जाती है तो स्पार्क बनता है, वो अर्थ में आते हैं वो चार्जेस। क्लियर, दिस वाज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक। तो ये दिस इज गुड क्वेश्चन, ठीक है।
क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? जो छोटा है, छोटा कंडक्टर होता है, उसकी फील्ड ज्यादा होती है, वो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल लिखा है ऊपर, ध्यान से सुनो ना, पोटेंशियल सेम होगा। V1 इज इक्वल टू V2 से स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम में चार्ज विल स्टॉप फ्लोइंग जब तक पोटेंशियल जिस बॉडी का ज्यादा है उस बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में जाते हैं। हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर थे, तो मैंने क्या बोला था, चार्ज टोटल चार्ज का आधा आधा ले लो। अनआइडेंटिकल होंगे तो यहाँ से निकालने पड़ेंगे, दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, V1 इज इक्वल टू V2 से, और दूसरा इनिशियल टोटल चार्ज कितना है, यहाँ से हमें Q1 Q2 का रेशियो आ जाएगा, और टोटल चार्ज कितना है रेडियस के टर्म में आ जाएगा Q1 Q2 का, टोटल चार्ज कितना है उस दो इक्वेशन सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, है ना? ठीक है, तो चार्जेस किस पे ज्यादा होंगे बोलो फिर? जस्ट पोटेंशियल दोनों पे इक्वल है ना, फील्ड जो है छोटे वाले पे ज्यादा फील्ड, और चार्ज किस पे ज्यादा होंगे? यहाँ से देखो, बड़े वाले पे देखो, Q बाई ए रेशियो, यहाँ से ये देखो, ये तो हमने बाद में लिखा, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, जिसका एरिया, जिसका ए ज्यादा है, उसका चार्ज भी ज्यादा होगा, तभी तो ये V1 इज इक्वल टू V2 होगा। यहाँ से देखो, K Q1 बाई ए इज इक्वल टू K Q2 बाई बी, तो ये रेशो और ये रेशो इक्वल होना है, मतलब ये दोनों बराबर, K तो कैंसिल हो जाएगा, जिसका रेडियस बड़ा उसका चार्ज बड़ा होगा, जिसका रेडियस छोटा उसका चार्ज भी छोटा होगा, तभी तो पोटेंशियल इक्वल होंगे इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, ये सब पॉइंट तुम थोड़े से सोचो इसके ऊपर, ये एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है ना? तो सिग्मा का क्या स्टेट है, सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, सिग्मा का रेशियो क्या आ रहा है, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बी बाई ए आ रहा है ना, छोटे पे ज्यादा सिग्मा की बड़े पे ज्यादा सिग्मा, ये भी बताना है तुम्हें। चौथा क्वेश्चन ये है मेरा, V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है छोटे पे ज्यादा है और चार्ज बड़े पे ज्यादा है, और सिग्मा किस पे ज्यादा है? छोटे वाले पे। छोटे वाले पे ज्यादा आएगा, ये टेस्ट करके देखना तुम लोग। हाँ, तो यही है ना, देखो यही मतलब हुआ ना, सिग्मा इज, लास्ट वाला जो पॉइंट है, पॉइंटेड एट का मतलब क्या है, पॉइंटेड एट, और ऐसे लिख दो, सिग्मा मोर ऑन स्मॉल स्फीयर। ये 4 क्वेश्चन बन गए इसमें, पता, और ये कंपटीशन में ज्यादा ये तुम्हें इनकाउंटर होते, सिग्मा किस पे ज्यादा, चार्ज किस पे ज्यादा, फील्ड किसकी ज्यादा, पोटेंशियल किसका, तो ये 4 क्वेश्चन बन गए एक में से। अभी डाउट है तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, पोटेंशियल इक्वल, फील्ड छोटे वाले की ज्यादा है, इसीलिए सिग्मा भी छोटे वाले का ज्यादा है, और चार्ज बड़े वाले पे ज्यादा है। पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए रेशियो जो है Q बाई आर, दोनों का पोटेंशियल इक्वल है ना, तो आर बड़ा है तो Q भी बड़ा होना, तभी पोटेंशियल इक्वल हो सकते हैं। यहाँ से देखो, तो इसके इस क्वेश्चन के बारे में तुम इसको सॉल्व, चारों पॉइंट अलग अलग करके लिख के रखना, ठीक है, तो ये तुम्हें काम आएंगे सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, है ना, कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी वी हैव सीन बिगिनिंग, फर्स्ट चैप्टर में तुमने फर्स्ट डे या सेकंड डे ही मैंने बता दिए थे। कंडक्टर की पॉइंट्स जो है, फील्ड इनसाइड 0 होती है, सरफेस पे नॉर्मल होती है, पोटेंशियल सेम होता है, तो वो पॉइंट को अभी यहाँ पे उन्होंने एनसीईआरटी बुक में एक एक करके डील किया है। तो लेट मी रीड एंड टेल यू, outer valence electrons part away from the atom and are free to move, but they cannot leave the metal or conductor. They are free to move all over the conductor, but they cannot come out because they are bound to the positive ions, है ना, एटम से जहां से निकले वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, they cannot come out। उनको बाहर निकलना है तो हमें थोड़ा रेडिएशन देना पड़ता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उनको निकाल सकते हैं, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। inside the conductor electric field is 0, and already ये हम लोग प्रूव भी कर चुके। if conductor is charged or kept in the external field in the static situation, when there is no current, electric field inside is 0, है ना, करंट तो होना ही नहीं है ना इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है तो करंट नहीं आना चाहिए, तो फील्ड when they are charged then also field is 0, when they are kept in external field then also 0। वो वाला सेकंड पॉइंट नंबर भी यहाँ पे आ रहा है, एक्सटर्नल फील्ड में कैसे 0 हो जाता है, पहले मैंने बताया था तुम्हें, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते, हम अब डायग्राम से देखेंगे इसमें। सेकंड पॉइंट, एट सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द
सरफेस है ना, ये प्रॉपर्टी भी थी चार्ज बॉडी की, है ना। नॉर्मल नहीं होगा, कोई कंपोनेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा एंड चार्ज विल स्टार्ट, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, है ना, which is not true in this chapter. There are no extra charges inside the conductor in static situation. They are free to move. They will come on the surface. Electrostatic potential is constant throughout and has same value inside and outside. तो फोर्थ पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे. इट फॉलोज फ्रॉम द पॉइंट 1 and 2. 1 क्या बोलता है, अंदर फील्ड जीरो होगी. दूसरा क्या बोलता है, सरफेस पे नॉर्मल होगी. तो दोनों पॉइंट्स का एंड रिजल्ट है ई इज जीरो इनसाइड एंड ई इज जीरो इनसाइड एंड no tangential component on the surface, therefore no work is done in moving the small charge, test charge inside and on the surface. Thus there is no potential difference inside also, on the surface also. ठीक है, work done zero होगा because field भी तो normal है surface पे. No work done, therefore it has to be equipotential. VA is equal to VB, VA minus VB is work done per unit charge. फिफ्थ पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर गिवन बाय दिस फार्मूला. ये कहीं पढ़ा है हमने? इनफाइनाइट शीट में भी तो यही था, नहीं थोड़ा डिफरेंट था. क्या डिफरेंट था? 2 था उसमें, यहाँ पर इसमें 2 नहीं है. क्यों 2 नहीं है, अभी हम डेरिवेशन में देखेंगे. सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस. तो ये चार्ज कंडक्टर है, इसमें हमने गॉसियन सरफेस ले ली, एक डीएस यहाँ एक अंदर. तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है. तो इसीलिए एक ही गॉस, उसमें इनफाइनाइट शीट में यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें 2 नहीं है क्योंकि अंदर की तो इफेक्ट इनइफेक्टिव हो गई ना. तो इसलिए यहाँ पे 2 नहीं आता, इसलिए नीचे 2 नहीं आता. बाकी ये सेम है. क्यू को क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डीएस. यहाँ पे जो कितना चार्ज अंदर रहेगा, सिग्मा 1 मीटर स्क्वायर पर है, तो कितना मीटर हमने, कितना मीटर गॉसियन सरफेस ने इंटरसेप्ट किया, डीएस मीटर इंटरसेप्ट किया, तो डीएस से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे 2 नहीं आया. तो ये छोटा डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछते हैं, ये वाला भी, ठीक है. इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, डेरिवेशन, ठीक है. अच्छा, somebody may say no, मैं तो बहुत बड़ा बोलूंगा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर यहाँ तक ले लूंगा ऐसा, तभी भी यही आएगा. क्यों, यहाँ पर एक इंटरसेप्ट हो रहा है, यहाँ सिग्मा इंटू 2a, यहाँ पे सिग्मा इंटू ds, सॉरी सिग्मा इंटू ds, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी फील्ड आएगी, यहाँ भी फील्ड आएगी. तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा अगर बड़ा हमने गॉसियन सिलेंडर लिया, ठीक है. यहाँ पर भी सिग्मा इंटू ds, यहाँ भी सिग्मा इंटू ds, यहाँ पर फील्ड नॉन जीरो, यहाँ भी फील्ड नॉन जीरो, तो ये भी 2, ये भी 2 आ जाएगा यहाँ पर. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो बोथ वे इट इज कमिंग सेम, है ना. ये लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है, सपोज ये कंडक्टर है, तो दिस इज द कंडक्टर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परमानेंटली कंडक्टर है. ऐसे तो हेडिंग हमने डाला ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, फिर भी तो कैविटी जो होती है ना, उसमें फील्ड जीरो होती है यहाँ पर, ठीक है. लेट अस सी, whatever be the charge or field outside, any cavity in the conductor remains shielded from the outside effect, that is field inside the cavity is always zero. This effect is used to protect the sensitive instruments from outside electrical influences. लैब में जो रखते हैं ना, तो मेटल के बॉक्स के अंदर रखते हैं, तो ना तो चार्ज बॉक्स के अंदर फील्ड जा सकती है, या फिर कोई एक्सटर्नल फील्ड है वो भी अंदर जीरो हो जाएगी. एक्सटर्नल फील्ड कैसे जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से. आगे वो पॉइंट आ भी रहा है, और फील्ड जीरो होती, गॉसेस लॉ से हमने प्रूव भी किया है ना. तो ये मेटल बॉक्सेस में, सपोज कार है, सपोज यू आर ड्राइविंग द कार, तो यू आर इनसाइड द, यू आर वेल प्रोटेक्टेड बाय द लाइटनिंग. पता है तुम्हें, कार जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करती, मेटल की है पूरी. सपोज उसके ऊपर लाइटनिंग हुई भी, तो अंदर फील्ड लाइन जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करके फील्ड लाइन जीरो कर लेंगे, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव कर लेंगे, है ना. और उसके बाद जो चार्जेस हैं व्हील से होते हुए ग्राउंड में चले जाते हैं, है ना.
तो व्हील वैसे नॉन कंडक्टर होता है, तो गैप होता है ना थोड़ा सा, वो इलेक्ट्रिसिटी जब एयर आयोनाइज होके ग्राउंड में चली जाती है। वो डायग्राम भी है रेस्निक हॉलिडे के बुक में, रियल डायग्राम। किसी की कार के ऊपर लाइटनिंग हुई और व्हील से ग्राउंड में जाते हुए भी वो दिखाई पड़ रही है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, कैविटी में नेट फील्ड 0 होती है हमेशा, और इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं मेटल बॉक्स में लैब में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तुमसे 2.7। ये मैं अभी डेमो भी दिखाने वाला हूं तुम्हें। कॉम रन थ्रू द ड्राई हेयर, अटैक द स्मॉल बिट्स ऑफ द पेपर, वाई। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, अभी डेमो भी है। और रेनी सीजन में क्या होता है कि वो फ्रिक्शन कम होता है, उस समय एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाते, कॉम चार्ज नहीं हो पाते। और ये ऑर्डिनरी रबर तो इंसुलेटर होती है, बट स्पेशल रबर टायर्स एयरक्राफ्ट में बनाए जाते हैं, उसमें थोड़ा सा कंडक्टिंग मटेरियल जाता है, लगाया जाता है, इनबेड किया जाता है। तो जैसे लैंड करता है एरोप्लेन, जो भी चार्ज उसकी बॉडी होती है ग्राउंड से, टायर कंडक्टिंग टायर से होते हुए ग्राउंड में चली जाती है, सेफ होते हैं, है ना। ये मैंने, और ये व्हीकल्स कैरिंग द इन्फ्लेमेबल मटेरियल, उसमें मेटल की रोप हैंग करती है, ग्राउंड को टच होती रहती है, तो अगर चलने से उसको चार्ज कुछ मिल रहा है तो ग्राउंड में चला जाता है। बट जनरली क्या करते हैं ड्राइवर लोग, उसको ऊपर कर देते हैं। सेफ्टी क्या है, ग्राउंड में टच होने से सेफ्टी है। और ये बर्ड्स जो है एक वायर पे बैठी होती है, सिंगल वायर पे, दोनों दोनों लेग उसकी एक ही वायर पे है। यहाँ भी 220 वोल्ट, यहाँ भी 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं, तो उसकी बॉडी से करंट पास नहीं होगा, है ना। अगर लाइव वायर और नीचे न्यूट्रल वायर को टच कर लिया किसी बर्ड ने, बैट का ऐसा होता है, ऊपर लाइव वायर 220 वोल्ट, नीचे न्यूट्रल है 0 की, बैट के विंग्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, वो टच कर जाते हैं दोनों को इधर, तो उसकी तुरंत डेथ, इंस्टेंटली डेथ हो जाती है, करंट फ्लो हो जाता है उसकी बॉडी से होता हुआ न्यूट्रल वायर 0 पर। हाँ बोलो, कुछ एनीथिंग यू वांट टू से, एनीबॉडी, बोलो। बर्ड्स अपने दोनों पैर रखते हैं इसलिए वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उसके न्यूट्रल ऊपर नहीं होता, न्यूट्रल नहीं मतलब होता, दोनों पैर उसके 220 वोल्ट पे होते हैं। ये वायर में 220 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट, तो उसका एक पैर यहाँ पे और दूसरा पैर भी उसी वायर पे, तो 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, उसके पैरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, एक ही वायर हाँ पे रहती है, दूसरी वायर को टच नहीं कर सकती। बैट जो होते हैं ना, उनके विंग्स उनकी बड़े। जगह अपन रहे तो हाँ हाँ वही तुम सवाल। भी, यू आर सेफ, यू आर सेफ। अरे ये जो अमेरिका यूएस वगैरह में ये लोग जो टेक्नीशियन काम करते हैं ना, ये 10,000 वोल्ट जो होती है हाई टेंशन वायर, उसको भी स्विच ऑफ नहीं करते वो लोग, बहुत सेफली करते हैं, एक ही अपने वेल इंसुलेटेड रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी उसके इंसुलेटेड रहते हैं, बट दे इंश्योर दैट कि दूसरी वायर के आसपास भी मतलब कांटेक्ट ना हो पाए। तो लाइव वायर में ही काम करते हैं वो लोग फॉरेन कंट्रीज में, है ना, पावर सप्लाई को ऑफ नहीं करते वो। ठीक है, तो उसमें बस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम लोग भी जैसे टच करते हैं ना, जैसे मैंने बोला अपना अपना कांटेक्ट 220 वोल्ट से हो गया, और अपने जो पैर हैं ऑफ द ग्राउंड है, या हमने रबड़ की चप्पल पहनी हुई है, तो अपना पाथ कंप्लीट नहीं हो पाता, करंट फ्लो नहीं होता है, तो हमें ज्यादा रिस्क नहीं रहता, थोड़ा सेंसेशन होता है बॉडी में, बट हमारे फैटल नहीं होगा, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, वी आर सेफ। ठीक है, ओके। तो ये है, तो ये सब पॉइंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट में, करंट पासेस ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, आंसर भी लिखे हैं देखो। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया तुम्हें, तो एक ही वायर पे है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल नहीं है, 220 वोल्ट एक पैर पे, दूसरे पैर पे, इवन वो हाई टेंशन वायर होती है जो जो पावर स्टेशन से सिटीज में आती है, उसमें 10,000 वोल्ट से ज्यादा रहता है, तभी भी वो कुछ नहीं होता उनको। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना, नाम ये पोलराइजेशन के नाम से, बट हाँ बोलो सर, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ ना। हाँ हाँ, वही उसी पे आ रहे हैं हम, उसी पे आ रहे हैं। ये डायलेक्ट्रिक जो है, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, ये अभी हम डायलेक्ट्रिक क्या इंसुलेटर है, अपने पेपर पीसेस है ना, डायलेक्ट्रिक है, तो उनकी उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम डिस्कस करने से पहले डेमो देखते हैं। उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पोलराइजेशन हम लाइट में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पोलराइजेशन होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अनचार्ज बॉडी जो है, चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को कैसे अट्रैक्ट करती। तो देखो अभी जैसे हमने ये प्लास्टिक को हमने ड्राई हेयर पे रख किया है ना, मैं प्लास्टिक का कवर था, अभी मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। ओके, यहाँ से देखते हैं, इससे ड्राई हेयर पे रख किया तो ये चार्ज हो जाएगी, सपोज हमने इमेजिन किया
उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और ये ओके पहले देखो ये प्लास्टिक का जो कवर है अनचार्ज है, सॉरी यहाँ पे देखो अनचार्ज है। पेपर पीसेस मैंने ऐसे रखे, डाइलेक्ट्रिक होते पेपर पीसेस, प्लस माइनस उनका मॉलिक्यूल जो प्लस माइनस एक साथ है कुछ नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होते। फिर हमने क्या किया, चार्ज, अभी हम चार्ज बॉडी लाए उसके पास, तो जो मॉलिक्यूल्स है पेपर पीसेस के अंदर वो स्ट्रेच हो जाते हैं ऐसे, पोलराइजेशन बोलते हैं उनको, पोलराइज हो गए। पहले डायपोल मोमेंट 0 है उसका, P इज इक्वल टू 0 है, अभी ये पोलराइज हो गए, इनका माइनस प्लस अलग अलग हो गया है ना, मॉलिक्यूल्स में प्लस माइनस होता ही है सभी में। तो ये माइनस जो है माइनस की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पेपर पीसेस अनचार्ज होते हैं फिर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं वो, बिकॉज द पोलराइजेशन मीन्स उनके नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पोलराइजेशन, plus and minus will be separated, and that even if they are uncharged, they get attracted by the charged bodies. So what conclusion on this, कि uncharged bodies can be attracted by the charged bodies, ठीक है। रिपेल नहीं होगा, रिपेलिंग कभी नहीं होगी। attraction is the indication other body is either positively charged or it is neutral, ठीक है। और दूसरा लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो दोनों डेमो देखो अभी, सी बोथ द डेमोस जो कल ही मैंने रिकॉर्ड किए थे तुम्हारे लिए। साउंड थोड़ी कम है, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया तुम्हें दोनों पॉइंट को। पहले ये देखो कि लाइक जो है हाउ द लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। पहले मैंने स्ट्रॉ को ड्राई हेयर पे रब किया, इसके स्टैंड के ऊपर रख दिया। अभी दूसरी स्ट्रॉ को भी ड्राई हेयर पे रब कर रहे हैं और इसके पास लाएंगे, दोनों लाइक चार्जेस होंगे। देखो ये दूसरी घूमने लगी, देखो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। दूसरी तरफ से देखो फिर से दूर भाग रही, दोनों तरफ से दूर भाग रही। तो दिस इज द लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। दूसरा देखो, ये तुम लोगों ने किया भी होगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट तो सबने किया होगा। पहले हमने क्या किया, पहले उसको रब नहीं किया, प्लास्टिक उसको कवर को पेपर पीसेस रख के, अभी देखो रब कर रहे हैं, देखो क्या होता है, देखो कितने ब्यूटीफुली दे आर अट्रैक्टेड, है ना। दिस इज द चार्ज बॉडी अट्रैक्टिंग अनचार्ज बॉडी। छोटा डेमो, ठीक है, हैप्पी, समझ में आया? तो देखिए तुम भी वैसे कर सकते हो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, टाइम मिला तो मैं तुम्हें एक एक करके दिखाऊंगा, है ना। घर में पहले रिकॉर्ड कर लूंगा फिर तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं ये पोलराइजेशन, है ना। तो ये सब डाइलेक्ट्रिक, ये पेपर हो गया, ग्लास, वुड, माइका, ये सब डाइलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पे पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि कंडक्टर में देखो कैसे फील्ड 0 होती है, अंदर कैसे। हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ये देखो ये एक्सटर्नल फील्ड अंदर भी इमीडिएटली कंडक्टर के अंदर आ जाती है। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अभी इस तरह भागते हैं, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए आके, इधर ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो इंड्यूस फील्ड, कब तक इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरफ, जब तक ये दोनों फील्ड इक्वल नहीं होगी, ई आउटसाइड एंड ई इंड्यूस दोनों अपोजिट है, उनका नेट 0 ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अक्रॉस द कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, फ्रीडम है उनके पास। तो कब तक करेंगे, जब तक नेट फोर्स 0 ना हो जाए उसके ऊपर। जब नेट फील्ड 0 हो जाएगी तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा मूव पर। लेकिन इसमें क्या होता है, नॉन कंडक्टर्स में, डाइलेक्ट्रिक में वो बाउंड होते हैं, वो अपने पोलराइज होके और जितना अपोज कर सकते हैं अपोज करेंगे। देखो कैसे, दूसरे डायग्राम में आते हैं, देखो इसमें देखो इतना ही इंड्यूस हुआ बस। कैसे इंड्यूस होता है देखो, लास्ट डायग्राम में आते हैं, एक्चुअली वो लास्ट में दिया, शुरू में ही होना चाहिए था वो। देखो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई ऊपर, देखो कैसे लगाते हैं ये अभी हम कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। एक प्लेट ये होगी, इस पे प्लस सिग्मा होगा, ये कंडक्टिंग प्लेट दूसरी होगी, माइनस सिग्मा होगा। तो यहाँ से एक्सटर्नल फील्ड सेटअप हो गई। उसके बाद क्या होगा, ये बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक का स्लैब डाला हुआ है ना, तो ये पोलराइज हो गए उसके मॉलिक्यूल्स से। तो ये देखो, ये प्लस माइनस कैंसिल करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल करेंगे, ये प्लस। तो ये फर्स्ट, ये एक लेयर इधर रह गई नेगेटिव की और ये पॉजिटिव की लेयर। तो यहाँ से हमारी ये इंड्यूस फील्ड डेवलप होती है, देखो लास्ट लेयर से जो बची इंड्यूस फील्ड डेवलप होती, बट उतनी नहीं हो पाती जितनी एक्सटर्नल फील्ड है। यहाँ पे देखो लिखा है, इस पॉइंट में मैं बाद में भी आता हूँ, है ना। तो ये बाउंड चार्जेस अपनी जो है जितनी फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं उतनी करेंगे, तो नेट फील्ड 0 नहीं हो पाएगी। देखो तो ये नेट फील्ड रिमेन्स कितनी रहती है आगे हम देखेंगे।
ईपी मीन्स इंड्यूस चार्जेस, ये भी सॉरी सिग्मा पी, ये भी सिग्मा पी होना चाहिए माइनस, यहाँ पे मैं लिख दूं ये भी सिग्मा पी माइनस है ना। तो ये प्रिंटिंग एरर है एनसीईआरटी बुक में। ये तो ये फ्री है, ये वाले देख रहे हैं, ये फ्री। ओके चलो फिर इसको देखते क्या है ये, बट तुम्हें बुक्स में लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी, बट मैंने मेन मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं देखो। Dialectics are non-conducting substances. In dialectics, external field induces the dipole moment by stretching and reorienting the molecules of the dialectic. Collective effect is net charges on the surface which opposes the external field. जो मैंने लास्ट डायग्राम दिखाया था, net field inside depends upon the nature of dialectic. Different जो है differently अपोज कर पाएंगे, लेकिन पूरा जीरो नहीं करा पाएंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मीन जिसका इनिशियली डाइपोल मोमेंट जीरो, नॉन पोलर मतलब नॉन डाइपोल मोमेंट। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके क्या होते हैं, दोनों के इसके प्लस माइनस एक ही जगह होते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है इनिशियली। तो सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, लेकिन इसमें क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स में H2O HCl इनके ऐसे रहते हैं, थोड़े से माइनस प्लस सेपरेटेड रहते हैं इनिशियली, एक्सटर्नल फील्ड नहीं भी है तभी भी वो सेपरेटेड रहते हैं, उनको पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम में दिखा है, ये दो कौन से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये दो सबके प्लस माइनस एक साथ है जब फील्ड नहीं है। जब फील्ड हमने अप्लाई की, यहाँ पर फील्ड ऐसे अप्लाई कर दी, तो क्या होगा, सबके नेगेटिव लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, देखो घूम जाएंगे वो, क्योंकि फील्ड ऐसे है, डायरेक्शन नहीं दिखाई ऊपर, ऐसे होनी चाहिए फील्ड, सबके नेगेटिव लेफ्ट में हो गए, स्ट्रेचिंग हो गई उनकी, दे गेट स्ट्रेच, घूमेंगे नहीं, नेगेटिव थोड़ा लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये नॉन पोलर में। पोलर मॉलिक्यूल में इनके पास है तो डाइपोल मोमेंट माइनस प्लस, रैंडमली ओरिएंटेड, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका इधर है, इसका ऊपर इसका नीचे, रैंडम ओरिएंटेशन। जब एक्सटर्नल फील्ड हमने ऐसे लगाई तो सबके देखो माइनस एक तरफ हो गए, सबके डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट ऐसे हो गए, एक ही डायरेक्शन में टेंड अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो ये इनका बिहेवियर है सब। लीनियर कुछ ये जो हम यूज करते हैं ये इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लीनियर आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक्स होते हैं, वो उनका बिहेवियर थोड़ा कैसा रहता है, उसमें जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ होता है। फील्ड बढ़ाएंगे तो डायपोल मोमेंट बढ़ता है, धीरे धीरे इसमें भी, धीरे धीरे इसमें पूरा टर्न हो जाएंगे, ये पूरा टर्न होके फील्ड की डायरेक्शन में, अगर फील्ड ऐसी है तो ये पूरा टर्न हो जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे फील्ड की डायरेक्शन में। मोर फील्ड मोर उनकी अलाइनमेंट हो जाएगा, उनको लीनियर बोलते हैं। एक टर्म पोलराइजेशन है, ये पहले नहीं पूछते थे, अभी इन्होंने बोर्ड में पूछना शुरू किया है एनसीईआरटी बुक में। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स डायपोल मोमेंट इज डेवलप्ड केप्ट इन द एक्सटर्नल फील्ड। देखो इसमें भी डेवलप हुआ, इसमें भी डेवलप हुआ, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, है ना। एक मीटर क्यूब में कितने डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, है ना। डायपोल मोमेंट इंड्यूस डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। और कैसे इसको, हाउ इट इज गिवन फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक, डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय, ये सब्सटिबिलिटी है, एक्स जैसा रहता है, सब्सटिबिलिटी ऑफ डायलेक्ट्रिक मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल फील्ड, वेयर दिस इज द, ये जो टर्म है कांस्टेंट फॉर डायलेक्ट्रिक एंड नोन एज सब्सटिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल सब्सटिबिलिटी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्ड नहीं लिखा हमने, इलेक्ट्रिकल सब्सटिबिलिटी ऑफ मीडियम, और ई इज अप्लाइड फील्ड। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पोलराइजेशन की यूनिट क्या होगी, डायपोल मोमेंट कूलम मीटर, नीचे वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी डायपोल मोमेंट की यूनिट, चाहे तो लिख लो, यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, कूलम पर मीटर स्क्वायर डायपोल मोमेंट की, आई मीन पोलराइजेशन की, सॉरी पोलराइजेशन की यूनिट, यहाँ से निकालो डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या है, P होता है ना, अपॉन वॉल्यूम, तो ये कूलम मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक, गॉट इट। तो ये थोड़ा सा तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता,
और ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर दिया। देखो छोटे क्वेश्चन रह जाते, व्हाट आर द पोलर मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लास्ट ईयर शायद ये भी पूछ लिया था, इससे पहले का पोलराइजेशन क्या होता है उसकी ऐसा यूनिट लिखो। ठीक है, तो ये थोड़े छोटे छोटे पॉइंट लिख लो, इसको मैं पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, ये फिर भी मैं रीड आउट करता हूँ यहाँ पे। पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू द टू चार्ज्ड सरफेसेस, एक ये बन जाएगी नेगेटिव की, एक प्लस की बन जाएगी। इंड्यूस्ड टू चार्ज सरफेसेस विद इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी। यहाँ पे देखो ये माइनस सिग्मा पी यहाँ पे लिखा है इस लेफ्ट साइड में, और फील्ड इधर से आ रही, फील्ड प्लस सिग्मा से आएगी, माइनस सिग्मा की तरफ जाएगी, वो एक्सटर्नल सिग्मा होंगे प्लस माइनस, उसकी फील्ड को ये कम करेगी अपनी। ऐसे ऐसे होता है अपोजिट, है ना। फील्ड जो इंड्यूस फील्ड आएगी, देखो लास्ट लेयर प्लस की बच रही और इधर माइनस की, तो इंड्यूस फील्ड ऐसे आएगी ईपी, और एक्सटर्नल फील्ड ऐसे आएगी ई नॉट। ऊपर था तो अपना ये डायग्राम में है, तो देखो ये देखो, ये इंड्यूस का प्लस इधर है, माइनस इधर है, इसलिए ये इधर आ रही, ये अप्लाइड फील्ड इधर से आ रही बाहर से। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं, टाइम भी होने वाला। कल हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, ये कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर वाले टॉपिक पे चले जाएंगे। लास्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको जस्ट मैं रीड आउट करता हूँ। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो गई, विच अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, which opposes the external field, hence the field inside the dielectric is reduced, it is given by external field divided by relative permittivity. suppose water की relative permittivity 81 है, तो external field 1/81 टाइम्स हो जाएगी। external field suppose हमने 81 SI यूनिट लगाई न्यूटन पर कूलम, इसकी वाटर है यहाँ पर, तो 1 SI यूनिट बचेगी, क्योंकि डिवाइड करना है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड करना है उससे, तो इतनी कम हो जाती है फील्ड। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा उतनी कम फील्ड होगी। और लास्ट लाइन देखते हैं, हियर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा पी इज ड्यू टू द बाउंड चार्जेस, नॉट फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस नहीं, कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, ये बाउंड चार्जेस है, इसलिए पूरा अपोज नहीं कर पाते, नेट फील्ड जीरो नहीं हो पाती इसमें। ठीक है, तो अभी अपने पास अगर टाइम है तो तुम ले सकते हो इसका स्नैपशॉट। कहाँ से शुरू किया था, ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। एनीबॉडी हैज एनी डाउट कैन आस्क। No, sir. तो वी आर सराउंडेड, ऑलवेज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? लाइट है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट नहीं है रात के टाइम में से अपनी रेडियो वेव्स होती है अपने चारों तरफ, है ना। If we रेडियो are वेव in क्या है? vacuum, if any object is in vacuum, then हाँ, वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। सन से जो लाइट आती है वैक्यूम से तो होके आती है, सन से जो लाइट आ रही है वैक्यूम से तो होके आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है, दे कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम आल्सो, दे डोंट नीड द मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, है ना। तो वैक्यूम में रहेगी। ग्रेविटी रहती क्या वैक्यूम में? वैक्यूम में ग्रेविटी रह सकती? रूम में से एयर निकाल दो पूरी, है ना, तो ग्रेविटी रहेगी, है ना। वैक्यूम में तुम ऊपर से जंप करो नीचे नहीं आओगे क्या? डोंट टेक द रिस्क। आएंगे ना तुमने। और वी आर, और तुम्हें वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस नहीं करना है ना, आगे करो उसको। तुम्हें वेटलेसनेस के लिए स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे तो हम भी स्पेस में है, अर्थ इज द स्पेसशिप, यू नो। अर्थ क्या है? स्पेसशिप है। वी ऑल आर इन द स्पेसशिप। हम बोलते हैं ना स्पेस में गए, स्पेस में गए, ऑलरेडी वी आर इन द स्पेस।